Namaste. Today, Informed Investor with Research and Ranking answers your most pressing investing questions once and for all. So, we will end the concerns backed with data and logics about the FII FPI outflows related to the rising bond yields. We will end the concerns emanating from the geopolitical events like the Israel-Hamas conflict. आज हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस की वॉलेटिलिटीज को लेके जो आपके जहन में क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करें। हम ये भी कोशिश करेंगे आज कि मार्केट की वैल्यूएशंस को लेकर जो आपके सवाल हैं उन सबको आज आंसर करें। We look to establish with data and with facts why India has emerged as a unanimous choice for investment amongst market analysts. और फिर वो 12 contributing factors जिनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा if India is your investing destination regardless of whatever market conditions you encounter. This Diwali special episode is a must save, must download, must keep investment classic जो आपके सारे सवालों को एड्रेस करेगा। आपको कभी भी किसी भी समय किसी भी फंडामेंटल क्वेश्चन की जरूरत पड़े तो ये एपिसोड आप जरूर रेफर कीजिएगा। सारे जवाब आपको इस एपिसोड में मिलेंगे। Watch the full episode or skip to the sections that's most relevant to you and don't forget to take notes. ये एक हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, रिसर्च एंड रैंकिंग के परिवार की तरफ से गिफ्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला कंसर्न एड्रेस करते हैं, दैट इज द कंसर्न अबाउट द FII FPI outflows related to the rising bond yields. और आप मतलब इन्वेस्टर्स have flooded us with questions about the impact of FII FPI outflows on emerging markets like India. और फियर ये रहता है कि एक मैसिव सेल ऑफ होगा, बहुत करेक्शंस होंगी। Let's uncover the reasons behind these recurring FII FPI outflows and how markets typically bounce back. The rising bond yields and interest rates make investments in developed markets like US more attractive. पहले इस चार्ट को देखिए that depicts the rising US Treasury bond yields over the recent times. तो जब bond yields बढ़ती हैं developed markets जैसे US में, investors can earn higher returns by investing in those bonds, US के bonds में. Now this makes investments in emerging markets like India less attractive, as investors can earn lower returns in emerging markets, and this is because emerging markets are generally considered to be riskier than developed markets. Emerging markets और ज़्यादा fearful हो जाती हैं because एक economic downturn, एक currency fluctuation का हर समय fear रहता है. So investors are less willing to take on the risks of investing in these markets. और एंड में ये देखा जाता है that वो developed markets को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे उनको higher returns मिल रहा है with far lesser risks. And this is why we are seeing money outflow of emerging markets like India. So investors take their money out of emerging markets and move it to the developed markets where they earn higher returns, lesser risks. ये आप याद रखेगा। एंड यही एक प्रेशर होता है करेंसीज के ऊपर इमर्जिंग मार्केट्स की, जिसमें कि हमें सुनने को मिलता है कि इंडियन रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है वगैरह वगैरह। व्हेन FIIs withdraw their investments, ये एक फेलियर का साइन नहीं है, तो इसको आप उस नजरिए से ना देखिएगा। इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस इन ए कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप. This volatility is evident in the fluctuating pattern of FPI equity outflows, exhibiting alternating periods of withdrawals and inflows. तो कभी कभार वो विड्रॉ करते हैं, कभी आपको बहुत सारे इनफ्लोज देखने को मिलते हैं, और ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, आगे भी कंटिन्यू करेगा, पहले भी कर रहा था, आगे भी कंटिन्यू करेगा। क्यों? एज सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड कंटिन्यू टू रेज इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्वेस्टर्स विल कंटिन्यू टू मूव देयर मनी इनटू द डेवलप्ड मार्केट्स. तो ये पहली बार नहीं है, आखिरी बार नहीं है, बार बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है हमें. दिस will likely put further pressure on the emerging markets and their currencies, जो कि हमने अभी आपको फिर दोबारा समझाने की कोशिश की. अब it is important to note that this is not a permanent trend. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, that emerging markets offer attractive growth opportunities and investors will eventually return to these markets
उनके पास कोई चॉइस नहीं है। हाउएवर नियर टर्म में देखेंगे ना आप, तो इन्वेस्टर्स प्रायोरिटाइज करती हैं अपनी सेफ्टी को, अपने रिटर्न्स को, विच इज लीडिंग देम टू इन्वेस्ट इन द डेवलप्ड मार्केट्स। FIIs एक हम कहते हैं वेव की तरह है दैट गो अप एंड डाउन, बट इंडियाज इकोनॉमी इज लाइक ए स्ट्रॉन्ग रॉक दैट कैन विथस्टैंड दीज वेव्स। सो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, FIIs had pulled out their money from India and came back जब सिनेरियो बहुत अच्छा हुआ। 2013 में जब यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ने हिंट किया था, टेपर ट्रैंटम का क्राइसिस हुआ था, FIIs had panicked and sold a lot of Indian stocks। 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब उन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम किया, एंड दैट बेसिकली सेंट द सिग्नल्स दैट इंडिया इज मोर अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स, और FIIs वापस आए और बहुत बहुत बड़ी तादाद में आए। इवन ड्यूरिंग द ग्लोबल ट्रेड टेंशंस एंड कोविड-19 पैंडेमिक, FIIs जो है ना वो इंडिया में इन्वेस्ट करते रहे हैं और बहुत अच्छी मात्रा में इन्वेस्ट करते रहे हैं। सो कॉन्ट्ररी, अब दूसरी चीज देखिए मजेदार कि फॉरेन फंड्स आउटफ्लोज फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स तो हमने देखे जो कि 25,000 करोड़ के हुए सिंस सितंबर, बट फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव बीन नेट परचेजर्स ऑफ इंडियन डेट सिक्योरिटीज। कमाल की बात देखिए, इन 9 out of 10 months इन दिस कैलेंडर ईयर, द ओनली एक्सेप्शन मार्च 2023 का जहां पे नेट सेलर्स थे, बट 9 out of 10 months ये इंडियन डेट खरीद रहे हैं। Well, reason could be that despite the narrowing spread between the Indian and the US government bond yields over the past year, the contraction जो हमें देखने को मिल रहा है is less as compared to other countries. So also unlike South Africa, Brazil, Mexico, India has not hiked the policy rates to protect the capital flows. तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छा इंडिया कर रहा है। और अगर आप एक साल बर साल कंपैरिजन देखना चाहें, एवरेज कंपैरिजन देखना चाहें, ये एक बड़ा पॉजिटिव सा एंथुसियाज्म आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जहां पे FPI कम्युनिटी हैज कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड इन इंडियन डेट मार्केट। सो पोटेंशियल फॉरेन इनफ्लोज जब इंडिया में आएंगी, स्पेशली डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगी, ये इंडियन फॉरेन कैपिटल को एक्सपैंड करेगा, इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को स्ट्रेंथन करेगा, ये इट विल डीपन द मार्केट फॉर द इंडियन रूपी, एंड दैट्स वेरी वेरी गुड। So that would also enhance the credibility of the Indian bond market, जो कि बहुत जरूरी है, making it easier for the government and corporate sector to raise the debt capital from global investors. अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, please don't worry about what the FIIs or the FPIs are doing. बिल्कुल भी चिंता ना करें, India's economy is doing enough and doing great to ride out these waves. तो इसको जहन में रखिएगा। चलिए अब दूसरे कंसर्न के ऊपर आते हैं, जो है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, जैसे इजराइल हामस की कॉन्फ्लिक्ट को लेके। अब कंसर्न्स हामस और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट को लेके ये हैं कि दीज आर नॉट ओनली टेकिंग ह्यूमन टोल, बट द पॉपुलर सेंटिमेंट जो कि इन्वेस्टर्स में देखने को मिला है वो ये कि ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न जरूर हमें देखने को मिलेगा। अब 3 सिनेरियोज इस पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट के निकल रहे हैं। पहला कि हॉस्टिलिटीज जो हैं गाजा और इजराइल की, वो कन्फाइंड रहेंगी, आपस में ही रहेंगी, फैलेंगी नहीं। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इंपैक्ट विल बी लिमिटेड, नॉट मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंज इन द ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और द ग्रोथ। और सेकंड सिनेरियो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ये स्पिल होगा टू द नेबरिंग कंट्रीज लाइक लेबनान एंड सीरिया, विच होस्ट पावरफुल तेहरान बेस्ड मिलिशियास। एसेंशियली एक प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो जाएगा इजराइल का एंड ईरान का भी। अब इस सिनेरियो में ऑयल प्राइसेस as much as $8 पर बैरल बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन 0.2 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ सकता है और ग्रोथ 0.3% से स्लो होती नजर आएगी। तीसरा सिनेरियो which involves escalation into a direct military exchange between the two regional enemies। अब इस सिनेरियो जो कि एक डायरेक्ट वॉर होगा, जो कि ईरान और इजराइल को इन्वॉल्व करेगा अगर ये पॉस्टुलेशंस हैं coupled with the unrest in the West Asia, इसमें ऑयल प्राइसेस could be as high as about $64 additional. So that might mean that about $150 a barrel की रेंज में भी हमें देखने को मिलेगा। Inflation meanwhile could rise by about 1.2 points and GDP growth may even fall by 1 point. In all these cases, इन सारे केसेस में एक डायरेक्शन सिमिलर नजर आ रही है, वो ये कि ऑयल एक्सपेंसिव होगा, इन्फ्लेशन हाई होगी, ग्रोथ स्लो होगी, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट देखने को मिलेगा। सो द वाइडर द कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड्स, द मोर इट्स इंपैक्ट बिकम्स ग्लोबल रादर देन रीजनल। इसीलिए फियर किया जा रहा है
ग्लोबल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में कि इन 3 सिनेरियोज में से कौन सा सिनेरियो इवॉल्व होता है। अब विद सो मेनी सिनेरियोज एंड पेसिमिज्म जो कि इमर्ज हो रहा है, इन्वेस्टर को कुछ सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं। पहला सवाल, ये जियोपॉलिटिकल इवेंट, ये जो अभी हमें देखने को मिल रही है, क्या ये पहली बार देखने को मिल रही है? क्या इस किस्म की इवेंट्स पीछे नहीं हुई और उससे हमने कुछ सीखा नहीं क्या? अब देखिए ना, रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन जो कि फरवरी 2022 में हुआ था, एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एविडेंस है कि इन्वेस्टर्स कैसे बिहेव करते हैं। अब 6 मंथ्स पोस्ट द इवेंट्स मार्केट 8% से ऊपर गई, और अब जब हम नवंबर 2023 की बात कर रहे हैं, मार्केट्स फ्रॉम फरवरी 2022 बढ़ चुकी हैं 19% से 19% से। सो हाउ शुड यू रिएक्ट टू द Israel-Hamas conflict? रिमेंबर, ये पहली बार नहीं है और ये लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो कि आपकी नर्व्स को टेस्ट करेंगे एज इन्वेस्टर्स। अब एक एग्जांपल देखिए, इराक वॉर जो कि 2003 में हुआ था, व्हेन द सेंसेक्स वाज एट इट्स लोएस्ट ऑफ 2924 लेवल्स, एंड सिंस देन इट हैज डिलीवर्ड 2122% रिटर्न्स। एक 16% का CAGR हमको देखने को मिला है पिछले 20 सालों में। 16% का CAGR। सो हर बार अपने से वाला सवाल पूछिए कि ये पहली बार है और क्या ये आखिरी बार है, और आपको सारे जवाब वहां मिलेंगे। अब जो चार्ट आपके सामने आ रहा है, अब देखिए ये सारी इवेंट्स आपके सामने मेंशन की हुई हैं। अब इस चार्ट को मुझे देख के बताइए कि इवेंट्स होने के बाद मार्केट्स वापस शार्पली मार्केट्स ने बाउंस किया कि नहीं किया, और दे हैव स्केल्ड अ हायर हाई और नॉट। आंसर दैट क्वेश्चन। इवेंट्स such as the health pandemic like COVID-2019 or the geopolitical crisis like the Russia-Ukraine war are all opportunities to invest। और sidelines में रुकने वाली इवेंट्स नहीं होती, या मार्केट्स को फियर करने वाली इवेंट्स नहीं होती। ऐसी इवेंट्स में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को लेकर जो आपके कंसर्न्स थे वो डेटा के साथ अब एड्रेस हो पाए हैं। So let's come to the next concern, and the concern is about the market volatilities related to elections, which is the popular question these days. So in a recent report titled 1 billion voters, will they please the market? Morgan Stanley की रिपोर्ट कह रही है कि इन्वेस्टर्स को सेंसेक्स about 10% to the run up of the elections ऊपर पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं 2024 के इलेक्शन से पहले। तो अब ये क्यों? बिकॉज भारतीय जनता पार्टी की एक डिसाइसिव मेजॉरिटी को लेके sentiments बड़े पॉजिटिव हैं, but at the same time this report is also saying that there could be a plus 5% to about a minus 40% wide range depending about the outcome of the polls. But पहले के experiences हमें क्या बताते हैं मार्केट्स को लेके, इलेक्शंस को लेके? So if you've seen the table, ठंडे दिमाग से आपको एक चीज जरूर समझ में आएगी, that 1 month before and 1 month immediately after the results, and similarly before the results and after the results, markets have by and large behaved very positive. So in the lead up to the general elections, stock markets will typically experience an increased volatility. अब वो क्यों? Because एक uncertainty होती है political outcome की, because policy की changes ultimately suffer करती हैं and can contribute to the volatility decisions. Now, the stock market's reaction to election results is swift और बहुत ड्रामेटिक होता है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। और स्टेबल गवर्नमेंट अगर होगी, एक क्लियर मैंडेट के साथ होगी, ये हर समय इन्वेस्टर्स को रीअश्योर करेगी, एक पॉजिटिव मार्केट का रिएक्शन देखने को मिलेगा। कन्वर्सली, अगर एक फ्रैगमेंटेड और एक अनसर्टन इलेक्शन आउटकम आएगा, इट विल लीड टू मार्केट टर्बुलेंस। Now, part of this reaction can also be attributed to the anticipated changes in policies, which is what I just said now. As an example, the party that comes to power often shapes economic policies. Investors closely analyze their political party's economic agenda. Taxation में changes हो सकती हैं, regulations में changes हो सकती हैं, economic reforms में changes हो सकती हैं। ये सारी की सारी चीजें impact कर सकती हैं sectors को, industries को, specific segments को। Now, what's applicable to domestic investors also holds true for foreign investors. तो जनरल इलेक्शंस की इन्फ्लुएंस फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इफेक्ट करती है, उनके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करती है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स असेस करते हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस किस्म की होगी बिफोर दे डिसाइड टू इन्वेस्ट इन द इंडियन स्टॉक्स, और
withdraw from the investments that they've already done. So a stable government can attract foreign capital, while political instability can lead to outflows. So it's safe to say, it is clear that Indian markets में short-term volatilities during the election period before and after होती हैं. However, long-term trajectory determine होती है governments की policy से, उनके action से, ability to promote a conducive business environment से for the companies, as we have seen in the recent past. Now, coalition governments do not necessarily lead to poor growth. ये मान्यता अपने दिमाग से हटा दीजिए. The report by Morgan Stanley noted that in the past 8 elections spread across 32 years, India has only 2 majority governments. सिर्फ 2 majority governments हमें देखने को मिली हैं, वो भी last 2 sessions में, जो कि 2014 और 2019 का रहा है. The least successful coalition governments were formed in 1996, which is United Front, and 1998, led by the Bharatiya Janata Party, lasting for only 2 years and 1 year respectively. अब इस दौरान पिछले 20 सालों में real GDP growth has averaged 6.2% from 1993 to 2023. The MSCI India market has risen by about 7.3 times in USD terms from Jan 1993 to July 2023, versus the MSCI ACWI, which is the All Countries World Index, with 4.7x, and MSCI Emerging Markets 2.3x. BSE Sensex has risen 25 guna, 25 times during this period. So, as the table below shows, markets' long-term trajectory is determined by the government's policy action and ability to promote a conducive business environment for the companies. Investors should approach the stock market with a long-term perspective, focusing on fundamentals and diversification to mitigate the election-related volatilities, if any. While general elections can significantly impact the stock market, a well-thought-out investment strategy and a focus on the broader economic landscape are key to successful long-term investing in this dynamic and vibrant democracy. अब कंसर्न एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप बार बार कहते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व कम हो रही हैं, अब स्टेबल हैं, अब थोड़ी सी और गिर गई. तो ये जो ड्विंडलिंग फॉरेक्स रिजर्व्स को लेके जो कंसर्न्स हैं, इनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. अब होता क्या है, दैट होल्डिंग लार्ज अमाउंट्स इन फॉरेक्स रिजर्व projects an air of confidence, which can prevent investors moving their capital to other countries, which could of course be a cause for the economic downturn. Now, these reserves are invested in different ways, like foreign government bonds, gold. Now, this can make money for the country and make investments more diverse. So, foreign exchange reserves सिर्फ बैंक में पैसा नहीं होता. They show that a country is smart about its economy and can handle tough times. For a growing economy like India, forex reserves का होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस इकोनॉमी और अपनी फाइनेंसेस को एक राइट ट्रैक, एक राइट डायरेक्शन में रखने के लिए. एंड देयर इज नो रीजन टू बी कंसर्न्ड अबाउट इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स, जो कि 600 बिलियन US डॉलर्स के करीब हो चुकी हैं. अब these forex reserves have grown steadfastly despite बहुत सारे क्राइसिस आए. अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सारे क्राइसिस नजर आ रहे हैं और कैसे कैसे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ती चली जा रही हैं. Let's come to the most important of the concerns that you have कि मार्केट्स तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, वैल्यूएशंस तो बड़ी स्ट्रेस्ड हैं, अभी तो सारी चीजें महंगी हो चुकी हैं, तो अभी क्या तुक बनता है मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का, बिकॉज मार्केट्स 19,400, 19,500 और पता नहीं कहां पहुंच चुकी हैं. सो इंडिया स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस आर ए हार्ट वार्मिंग लेवल्स. जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो कि आज की डेट में, नवंबर फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूं 2023 की, 20.96 के मल्टीपल पे मिल रही हैं आज. तो गुड न्यूज क्या है कि करंट मार्केट 5 साल या 10 साल की एवरेज जो हमें इंडेक्स पे देखने को मिलती है, या 1 साल की एवरेज है, उससे भी चीप मिल रही है. तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको जो कंसर्न होना चाहिए वो करंट वैल्यूएशंस पे नहीं होना चाहिए. आपका कंसर्न होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स जो आ रही हैं वैल्यूएशंस की, वो कहां हैं, वो कैसी नजर आ रही हैं. सो अगर वो भी नजर है, अगर हम देखें तो इट इज मोर हार्टनिंग. खुशी होनी चाहिए हमें कि FY25 का जो मल्टीपल आज की डेट में है, वो आप मानेंगे नहीं, एक बड़ा माउथ वाटरिंग लेवल पे मिल रहा है. 18 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स ऑफ 1080 फॉर द निफ्टी. और ये सारा कंसेंसस है एक्सपर्ट्स का, जो कि इन मार्केट्स को क्लोजली स्टडी कर रहे हैं.
ये टेबल देखिए, आपको सब समझ में आएगा। सो बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल पीई मल्टीपल्स, निफ्टी जो है बहुत अट्रैक्टिवली वैल्यूड है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं वेल्थ क्रिएट करना ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 3 to 5 years और इवन मोर। सो द बिग क्वेश्चन जो कि इस एपिसोड का सार है वो ये है कि आर यू कंसर्न्ड अबाउट इंडियाज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अहेड? वो सबसे बड़ा कंसर्न है जो हमें आंसर करना चाहिए। एज एन इंडियन मैं मानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं बायस्ड हूं इंडिया की तरफ, बट hear me out. Every investor now needs to swallow this truth pill if they want to overcome the fears about India's short term, medium term, long term investment prospects. ये आपको बात माननी पड़ेगी। तो चलिए इंडिया की एक MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स की जो परफेक्ट स्टोरी है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वो स्टोरी है क्या? उससे पहले MSCI क्या है? तो MSCI बेसिकली मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल का एक किस्म का मापदंड है, एक इंडेक्स है। इट्स ए ग्लोबल प्रोवाइडर फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स and indices and portfolio analysis. So MSCI indexes are widely recognized and used by investors या financial professionals से या asset managers से, ये सारी दुनिया में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। India's rising dominance in MSCI index ये एक टेस्टामेंट है इस कंट्री की ग्रोइंग इकोनॉमिक क्लाउड की, इट्स इंक्रीजिंग अट्रैक्टिवनेस की टू द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। Now the index which tracks the performance of stocks in emerging markets has seen India's weight rising steadily over the past few years. So India's rising dominance in MSCI index is a positive development for the Indian economy. अब ये बहुत ही easy कर देगा इंडियन कंपनीज, easy तो नहीं करेगा लेकिन बहुत conducive कर देगा इंडियन कंपनीज को अपना कैपिटल रेज करने के लिए on the global stage. It will also help attract more foreign investments to India, which will boost the economic growth and it will create jobs in India. Now, several significant factors have propelled India's remarkable ascent in the MSCI Emerging Index. वो क्या है? एक इंट्रोडक्शन रही है इंडिया's liberalized foreign ownership regime की, 2020 में ये स्टार्ट हुआ था, along with its outstanding growth trajectory and outperformance relative to the peers. It has spurred a surge in both passive and active portfolio investment flows in India. Now, this influx of capital has played a pivotal role in this transformation that you see today. Now, try and see what I'm saying and analyze it with a hand lens, because हम बार बार कहते हैं कि आप हमारी चीज किसी और की चीज कोई और आपको समझाने की कोशिश करे, उससे डेटा जरूर मांगें, उसको एविडेंस से बेस करें। सो अब जब हम कह रहे हैं कि इंडिया इज इमर्जिंग एज द यूनानिमस चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट enthusiasts across the globe और सारे एनालिस्ट मान रहे हैं कि ये बेस्ट चॉइस है इमर्जिंग मार्केट्स में। वो क्यों कह रहे हैं? अब देखिए, मॉर्गन स्टैनली हैज reaffirmed that its stand on India remains stand out overweight. तो कोट अनकोट अगर मैं पढ़ना चाहूं, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया remains a stand out overweight. We increase our overweight stance on Indian equities and as our most preferred emerging market. ये मॉर्गन स्टैनली कह रहा है। अब इंडियाज इन्वेस्टमेंट स्कोर जो है वो है 68 का, सिंगापुर का है वो सेकंड हाईएस्ट, वो है 54 का, ग्रीस का है 47 का, मेक्सिको का है 43 का, पोलैंड का है 38 का। ये हैं 5 मार्केट्स जो कि मॉर्गन स्टैनली इस साल अपना बेट्स लगा रही हैं। अब CLSA क्या कह रहा है? CLSA has upgraded India to overweight and has increased the portfolio allocation to 20% above the MSCI benchmark. सोचिए, the reasons CLSA जो साइट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट इंपल्स देखने को मिल रहा है, फेवरेबल एनर्जी प्राइसिंग है, इंप्रूविंग एक्सटर्नल बैलेंस की डायनेमिक्स हैं, रोबस्ट GDP ग्रोथ है, EPS की ग्रोथ है, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी है, एक मैक्रो आउटलुक है जो कि बहुत ही सपोर्टिव लग रही है। ये CLSA कह रहा है। JP Morgan has also upgraded India to overweight from neutral. This brokerage has advised investors कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको कुछ करेक्शन से डिप्स देखने को मिलती हैं, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड एंड लेवरेज ऑन अ पॉजिटिव हिस्टोरिकल सीजनैलिटी टू जनरल इलेक्शंस। सो सिमिलर अदर साइटेशंस जो आपको बिग ब्रोकरेज हाउसेस से देखने को मिलेंगी, लाइक नोमिरा व्हिच हैज अपग्रेडेड इंडिया
to citing strong top-down narrative and potential to benefit from China plus one theme. Now let's understand the factors correctly कि ये एक renewed enthusiasm जो हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के प्रति, एक preferred destination का, the best emerging market destination का, किसी भी sane investor के नजरिए से वो ऐसा क्यों है? Why is it? So let's identify the 12 key factors that make India the undisputed investment destination of choice for domestic investors and for foreign investors for decades to come. ठीक है? तो चलिए वो देखने की कोशिश करते हैं वो है क्या. The first factor is that India is the fastest growing major economy by a fair margin. आप इस ग्राफ को देखिए, मुझे बताइए कि इंडियन ग्रोथ को कोई भी आसपास चैलेंज कर पा रहा है क्या. Factor number 2, India is expected to be one of the top 3 global economies by 2027 as per the projections. ये आप देख पा रहे हैं इंडिया का रैंक कैसे चेंज हो रहा है over the years, and what is India's rank going to be expected by 2027, because India would be one amongst the top 3 economies in the world. The next factor is the wave of reforms जो कि इंडिया में देखने को मिल रही हैं that have been implemented, and these reforms have a very long term growth impact. ये reforms आपको चाहे corporate taxation के देखने को मिलेंगे, आपको चाहे economic formalization के देखने को मिलेंगे, लेबर रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट देखने को मिलेगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देखने को मिलेंगे. दिस वेरी फार फेच्ड एंड लॉन्ग टर्म बेस्ड रिफॉर्म्स दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट फैक्टर, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ना, दैट इज द बेस्ट, एंड दैट इज अ मोमेंट व्हिच प्रोवाइड्स द हाई टू एवरी इंडियन एंड वी रिजॉइस. क्यों? अगर आप EY की रिपोर्ट पढ़ें, इंडिया एट 100, इंडिया विल हैव अबाउट 1.04 बिलियन वर्किंग एज पीपल बाय 2030. सोचिए 1.04 बिलियन वर्किंग एज की पॉपुलेशन हमारे पास होगी. कॉरस्पॉन्डिंगली इंडिया की जो डिपेंडेंसी रेशियो है ये लोएस्ट रहेगी इन इट्स हिस्ट्री बाय 2030 एट अबाउट 31.2%. सो इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इंडिया के पास ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड और जो वर्कफोर्स होगी दैट विल बी अनपैरेलल्ड, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, गिवन दैट रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में अदरवाइज देखने को मिल रही है. इंडिया में बिल्कुल सिनेरियो उल्टा है. विद इंक्रीज पार्टिसिपेशन, खासकर विमेन लॉट की है इन द वर्क फोर्स, द साइज ऑफ द लेबर फोर्स हैज सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड, एंड दिस इज अ यूनिक एडवांटेज ओनली टू अस. फर्दर, आवर डेमोग्राफी ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद द कंजम्पशन पावर ऑफ अ यंग पॉपुलेशन. सोचिए टुवर्ड्स द डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर, खासकर जब हमारी पर कैपिटा इनकम $2100 से ऊपर जा रही है. नेक्स्ट चीज जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देखी जा रही है वो है इंडियाज राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग एफ्लुएंस. सो इंडिया 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन तो हो चुका है, वो एज अ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री. देयर हैज आल्सो बीन अ स्टेडी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मूविंग इनटू द सिटीज, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बिकॉज अर्बनाइजेशन एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर देखा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के मद्देनजर से. सो इंडियन सिटीज आर एस्टिमेटेड टू जनरेट 2/3 of the nation's economic output. So urbanization is going to be very, very important. The next factor is amazing, and that factor basically reflects India's surging internet penetration. अब देखिए ना, internet penetration in India एक बहुत ही remarkable journey रही है, because 12.6% ये हुआ करती थी 2012 में, और 2022 में ये बढ़ के हो चुकी है 48.7%. Imagine this. And this significant leap can be attributed to the widespread implementation of 4th generation broadband cellular network technology, जो कि एक बहुत ही competitive rates में देखने को मिल रही है in the entire world. If you compare it, this is probably the most affordable that you can get. कैसे? अब देखिए cost of 1 gigabyte of a 4G cellular data जो कि आज की डेट में 10 cents का देखने को मिल रहा है, वो पहले $5 का हुआ करता था 7 साल पहले. Such is the affordability and the overall spread of digitization and otherwise internet availability. Next is even a bigger factor, which is India's massive infrastructure push. अब 2023 का यूनियन बजट जो हमें देखने को मिला, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने ये कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रा को दिया जाएगा वो 33% बढ़ के था FY24 के कंपैरिजन में, एंड दैट स्टूड एट अबाउट
10 lakh crores, while the capex last year, अगर आपको याद हो, वो था 7.5 lakh crores. तो 33% का increase. And by the way, this represents 3.3% of the GDP. This significant rise emphasizes कि infrastructure development एक बहुत ही अहम मुद्दा है इस गवर्नमेंट को, which will drive the economic growth and it will generate employment opportunities and will have a significant ripple effect on the economy for the years to come, जिसको हम एक multiplier effect कहते हैं. अब ये देखिए कमाल की बात कि airlines have also reciprocated by making large investments into the fleet. Now, two of the largest airlines in India, Air India and Indigo, इन्होंने 1000 jets के orders Boeing and Airbus को दिए हैं, which is the largest order by the number of aircrafts in the history of the modern aviation. कमाल की बात. The growing fleets will cater to an estimated surge in air passengers to about 350 million by 2030, जो कि 144 million से बढ़ के 350 million होने जा रही है. 144 million थी 2019 में. अब नेक्स्ट फैक्टर जो है वो और भी मजेदार है, वो ये है इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. ग्लोबली इंडिया ने इस इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स करके दिए हैं. सो इंडियाज इनोवेशन इज अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स. आईटी में भी देखने को मिला, हेल्थ केयर में भी देखने मिला, लाइफ साइंसेज में देखने को मिला, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, फूड एंड बेवरेजेस में, इन सब में एक इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स की एक बड़ी सक्सेस इंडिया से एमिनेट हो रही है. With technology taking the center stage across industries and financial support made easily available, there are more opportunities for young minds. और हमने देखा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए कितना काम कर रहा है, with fresh ideas to contribute in terms of the new platforms, नए solutions जो कि which will have a far-reaching impact for the globe as such. Next factor is what we say is proxy to the India's growth story, which is the banking sector. और ये better than ever before हो गया है. रघुराम राजन जी ने एक बहुत ही अच्छी चीज शुरुआत की थी 2015 में, एंड देन एसेट दे हैड इंट्रोड्यूस्ड द एसेट क्वालिटी रिव्यू मैकेनिज्म, द AQR जिसको कहते हैं, जहां पे बैंक्स वर फोर्स्ड टू रिकॉग्नाइज देयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो अब जब उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए फोर्स किया गया, बैंक्स वर राइटफुली मेड टू प्रोवाइड फॉर दोज बैड लोन्स. सो इन शॉर्ट, बैंक्स वर फोर्स्ड टू क्लीन अप द बैड लोन्स एंड द मेस दैट दे क्रिएटेड, so that only those assets are shown that can truly earn income for them. As a result, क्या हुआ है? India saw the gross net performing asset ratio peaking in FY18. Since then, the bank asset quality has been steadily improving. The recent rally in the market can be attributed to the improving asset quality. देखिए आपके सामने ग्राफ आ रहा है, आप समझ पाएंगे इस चीज को. नेक्स्ट चीज है India's might in developing its global ties, जो कि हर दिन प्रतिदिन स्ट्रेंथन होती चली जा रही हैं, बिकॉज इंडिया has witnessed growing ties with the West and has formed alliances such as the Quad. Quad क्या है? एक 4 country military alliance है consisting of Japan, India, US and Australia to counter China, of course. Now trade is changing and bilateral trade even more, so as countries look for resources closer to the home in the face of growing geopolitical tensions. अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को देखते देखते, जो कि दिसंबर लास्ट ईयर में दिया, इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग टू साइन बायलैटरल ट्रेड पैक्ट्स विद यूनाइटेड किंगडम, विद यूरोपियन ओशन, विद इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क grouping as such. Now, discussions on the pact with Canada, however, remains halted with the last round held in July. According to experts, the benefits accrued to India are much lesser than what India can offer in terms of the market access for goods and trade. But the discussions are also serving as a starting point for conversations around non-tariff measures and services trade, which is more crucial for India specifically speaking. India is also going big in terms of the green ambitions that it is driving. कैसे? अब India is now the third largest producer of renewable energy in the world and has the potential to emerge as a green energy hub. अब एक ambitious targets set किए गए हैं to reduce the carbon emissions or increase the renewable energy adoption and develop green hydrogen. Investments from foreign investors are pouring in, and Indian conglomerates have also started pouring in, showing their might behind the green energy transition as India goes into the next era. There are a host of big leaps from the past that make India the most favored destination. अब ये टेबल देखिए आपके सामने, चाहे इस टेबल में देखिए कि इंडिया की एक राइजिंग डोमिनेंस स्टील प्रोडक्शन में जो कि इतनी इंप्रूव हो रही है, ऑटो प्रोडक्शन में जो इतनी इंप्रूव हो चुकी है, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स जो इंडिया पूरी दुनिया को दे रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसमें इंडिया का रैंक इंप्रूव किया है, मेनी मोर अपटिक्स. अब देखिए पूरा टेबल आपको समझ में आएगा कि हर एक सेन इन्वेस्टर
इंडिया को एक डिफरेंट नजरिए से क्यों देख रहा है, और देखना भी चाहिए। चलिए समराइज करते हैं अब कि why India is witnessing a journey of growth and of abundance। क्यों? बिकॉज एक अगर आप बात माने, जो भी कुछ हमने अभी डिस्कस किया है वो ये कि इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग एंड इट्स अ वेरी वेरी वेल पोजिशन्ड इकोनॉमी फॉर डेकेड्स टू कम। एक दो साल की बात नहीं है, डेकेड्स टू कम इट इज द बेस्ट पोजिशन्ड इकोनॉमी। जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में है वो इंटैक्ट है और दैट इज हियर टू स्टे। मोर इंपॉर्टेंटली डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड ग्रोथ स्टोरी है, ये अनस्टॉपेबल है। कोई भी ग्लोबल फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारे नंबर्स नहीं बिगड़ने वाले, बिकॉज डोमेस्टिक कंजम्पशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड मोर इंपॉर्टेंटली द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के नजरिए से। सो वी होप दैट दिस दिवाली एपिसोड हैज आंसर्ड ऑल योर कंसर्न्स, और ये आपके समक्ष, आपके साथ रहेगा फॉर एवर एज अ टाइमलेस क्लासिक, एंड दिस शुड सर्व to answer all your questions and all your concerns that you have. Please download it, keep it in your archives, save it. Whenever you have any doubts, go back to it, because this will again serve as a guide to answer all your questions, not today but in the years to come as such. So and saying this, happy Diwali wishes and wishes for a great health to you and your loved ones from the Research and Ranking Parivar. Jai Hind. Did you like watching this video? Then download our app Informed Investor to watch more such informative and interesting videos.